So, good morning, everybody, and I'm back. Actually, I'm really running late today. अभी हो रहे हैं 7:40 8:48 एंड 8:50 पे मेरी क्लास है. 8:48 पे अभी मैं बैठा हूँ. डेली स्टोइक पढ़ूंगा एंड क्लास जाना है. सो फटाफट करते हैं इसको. Yesterday was benefit of kindness. Today is frenemies, 18th of October. There is nothing worse than a wolf befriending sheep. Avoid false friendship at all cost. If you are good, straightforward, and well-meaning, it should show in your eyes and not escape notice. Marcus Aurelius, Meditation 11.15. It's pretty obvious that one should keep away from wicked and two-faced acts as much as possible. The jealous friend, the narcissistic parents, the unworthy partner. At first glance, Marcus Aurelius is reminding us to avoid these false friends. But what if we turn it down? What if we turn it around? What if instead we ask about the times that we have been false to our friends? Ultimately, that's what Sarkar's stoicism is all about. Not judging other people's behavior, but judging our own. We have all been a frenemy at a point or another. We have been nice to their faces, usually because they have something in it for us, but later in different company, we said how we really felt. Or we have strung someone along. Cared only when things were going well, or declined to help even when someone really needed us. This behavior is beneath us and worth remembering the next time we excuse someone else of being a bad friend. So, frenemies. Frenemies. Have I been frenemies to somebody? The answer is yes, I have been. I have been that guy जो भी इसने explain किया, who was jealous, who was ignorant, जब काम पड़ा तब याद किया, नहीं किया तब भूल गया. So my main problem is this कि मेरे साथ होता है ऐसा कि मैं महसूस करता हूँ कि जब मेरे को उसकी ज़रूरत थी तो मैंने उसको कॉल किया और जब ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया. This really happens a lot. And मैं बहुत ज़्यादा केसेस में इसको अवॉइड भी करने की कोशिश करता हूँ एंड करता भी हूँ. बट समटाइम इट डज हैपन. आई हैव बीन अ फ्रेनेमी, आई एग्री. तो आज फिर मैं देखूँगा. आई विल स्प्रेड काइंडनेस, अपॉर्चुनिटी ऑफ काइंडनेस. आई विल बी ट्रू, calm, composed, straightforward, and I'll make sure that I don't be a frenemy at all and people don't be frenemy with me. वो तो मेरे हाथ में नहीं है, but still. Okay, so class आते. मस्त लगता हूँ भाई मैं.
सो वेलकम बैक। आज का दिन ख़त्म होता है और मैं सोने जा रहा हूँ आज फाइनली, मतलब अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सो आज रिवाइज करते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था डेली स्ट्राइक के अंदर। याद नहीं आ रहा। तो आज हमने पढ़ा था फ्रेनेमीज। ओके ठीक है, दोज आर फ्रेंड्स बट दे आर इन फ्रेंड्स, दे आर एनिमीज। जो भी है, गुड चैप्टर, मज़ा आया। इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। तो हाउ वॉज माई डे? माई डे वॉज started off late, didn't attend in the first class, then went, sat with Simran, drew some doodles, then went to an LT, spent 2 hours efficiently, then came back, sat with Ritika, went on 5th floor, लैपटॉप चलाया वहाँ पे, then came back, had a lunch, रूम में बैठे 2 घंटे सोए, फिर उठे, नाश्ता करने गए, वापस आए, जिम गए, खाना खाया, घूमे, लैपटॉप चलाया, लैपटॉप पे बैठे, ऊनो खेला, रूम पे वापस आया, बाकी का काम किया, थंबनेल बनाया, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग एंड हेंस नाउ आई एम स्लीपिंग। सो it wasn't a productive day. I did some good things though, but it wasn't a productive day. A productive day has to be one जो चलता रहे, जिसमें आपका दिमाग जो आपको करना है उसी के अंदर लगा रहे। और ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? पहला काम तो जल्दी उठ के चीज़ें शुरू करूँ, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा हसल हो जाती है दिन के शुरुआत में ही। ओके, उसके बाद दोपहर में ना सोकर लाइब्रेरी जाना, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उधर जाने से रेदर देन आप अपने रूम पे बैठ के टाइम स्पेंड करोगे नींद लेके। हाँ, होता है, बहुत बार होता है कि आप सो जाते हो, मैं तो सो जाता हूँ। सोने से अच्छा आप लाइब्रेरी जाओ, वहाँ पे जो आपको करना है वो करो। ओके, लाइब्रेरी जाके फिल्म देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी तो कोई मुझसे पूछता है ना कहाँ था, मैं बोलता हूँ लाइब्रेरी था। क्या कर रहा था? फिल्म देख रहा था। बेस्ट है। देन 6 बजे मैच जाओ, 6 बजे तक मैच जाओ, रूम पे आओ, कुछ प्रोडक्टिव करो, देन जिम जाओ, 8 बजे 8:15 तक वापस आओ, फिर घूमो, फिर खाना खाओ, 10 बजे तक रूम पे आओ। आई गेस ये थोड़ा सा अजीब सा है ना कि 7 बजे से 10 बजे तक, दैट इज़ 3 घंटे आर नॉट सो प्रोडक्टिव। दे आर प्रोडक्टिव, हाँ, कि यार मैं 7 से 8 घूम रहा हूँ, मतलब 7 से 8 जिम कर रहा हूँ, फिर मैं घूम रहा हूँ, फिर मैं खाना खा रहा हूँ, और आधा घंटा अपने दोस्तों के साथ कैंपस में घूम रहा हूँ। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। दोस्तों के साथ भी घूमना ज़रूरी है। उसके बाद मेरे पास 10, 11, 12 और 1, मेरे पास 3 घंटे और बचेंगे। तो 3 घंटे में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट इन 3 घंटों के अंदर
पढ़ाई करने का बहुत कम मन करता है. दैट इज द वेरी पॉइंट टू बी फोकस्ड. इसको कैसे अवॉइड किया जाए, दैट हैज टू बी दैट वही इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को. थिंकिंग अबाउट दैट, कुछ करना पड़ेगा. छुट्टियां आ रही है, कुछ करना पड़ेगा. सो 20, 21, 22, 23 एंड 24, 4 दिन की छुट्टी आ जाएगी. आज क्या है, आज थर्सडे, कल 21 को सैटरडे, 21 को सैटरडे और ट्यूसडे तक छुट्टी ही मानो, क्योंकि मंडे को तो सीजी क्लास होती है. सो ये 4 दिन बहुत अच्छे होने चाहिए. कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए और सुंदर सीखना चाहिए. सो ये अपना गोल है. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना. अपन को सिर्फ यही करना है. उसके साथ जिम रोज़ आना है, शाम को घूमना है दोस्तों के साथ. घर भी बचेगा मेरे पास. कृष्णा घर जा रहा है, स्पर्श घर जा रहा है, पर्व घर जा रहा है, आधार घर जा रहा है. तो इट्स ऑल अबाउट मी, गर्व एंड माई फ्रेंड्स. मी, गर्व, रितिका, और कोई मेरे बकचोद दोस्त कैंपस के. दैट इज इट. बस इतना ही है. तो ये 4 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें मेरे पास बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है बाहर की. सो लेट्स कीप दिस इन माइंड एंड कल का दिन शुरू करते हैं. कल का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इतनी बकवास कर चुका हूँ. 7 मिनट से बकवास ही कर रहा हूँ. बकवास नहीं कर रहा मैं अपने दिन की बात कर रहा हूँ. तो ये बकवास नहीं है आयुष, सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको. तो चलते हैं, कल का दिन स्पेंड करते हैं. एंड विश मी लक. विश भगवान मेरे साथ रहे, भगवान मेरे साथ बने रहे और मैं सही काम करता रहूँ. लव यू ऑल.